Okay, so from today we are going to start with module 2. मॉड्यूल 2 में हमको सीखना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देन फ्रिक्शन एंड देन वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन, राइट? तो पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग एंड देन वी विल इंक्लूड फ्रिक्शन. तो नॉर्मली होता क्या है ना, फ्रिक्शन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये दोनों टॉपिक आर क्लोजली रिलेटेड विद ओनली वन डिफरेंस. यू इंक्लूड फ्रिक्शन और यू डोंट इंक्लूड फ्रिक्शन, इतना ही है. So we'll start with very basic things, and one of that being, I want to know how much do you know about Newton's laws of motion. What is Newton's first law of motion? तीन law है ना? Law of inertia. What is that law? What does it tell you? That or in uniform motion, correct? So let's just put title first, Newton's laws of motion, and as you said correctly, first law is law of inertia. I'll just say first law. So as you said, any body being at rest, I will say particle being at rest, it will remain at rest, or if it is moving with uniform velocity in a given direction, will remain in the same state unless an external unbalanced force is applied onto it. My question is, जब हम बोलते हैं that something is at rest, something is moving, are we considering that there is gravitational force or not? ये जो पहले लॉ का आपने स्टेटमेंट बोला है, क्योंकि when you say a body is at rest, a body is at rest where? For example, this mouse is at rest here. Does Newton's first law apply to this particular object? No. Why? Particle के लिए है, but we are talking in terms of forces here. Can you apply, let us say this mouse is a particle. Can you apply this for a mouse which is here in the gravitational field of Earth? तो पहला लॉ जब आप बोलते हो, you strictly say there is no force field, कुछ भी नहीं है वहां पे, right? That is one condition. तो how does an object move then? हमने इनिशियल पुश दे दिया. कैन यू प्लीज क्लोज ऑल? हमने इनिशियल फोर्स दिया है. हमने कब दिया है वी डोंट केयर, बट देयर वाज सम इनिशियल फोर्स व्हिच मेड द पार्टिकल मूव. और उसके बाद ना ग्रेविटी है ना कुछ है ना कुछ है, क्योंकि पार्टिकल बोलोगे तो मास होगा और ग्रेविटी होगी तो इट्स ट्रैजेक्टरी शुड चेंज. दैट इज द फर्स्ट थिंग. And you said law of inertia. So what do you mean by inertia? Yes, law of inertia. So ऐसा क्यों होता है? Why does a body does not change its state of rest? किसने रोका? What is the quantity that is stopping it from changing its state? You told me कुछ दिन पहले, you told me inertia कहाँ से आता है body को? Center of mass. Mass itself. तो linear motion में mass is the quantity which stops the body to change its rest. मतलब, और आपने बोला ही है, inertia is a tendency of body which resist any change. तो mass होता है उस केस में. Then we have learned only this much about Newton's first law, but there's a lot जो हम लोग धीरे धीरे आएंगे. And this is the only thing important as of now. What is Newton's second law?
पहले लॉ का आगे कंटिन्यू करना है ना। पहले लॉ में आपने क्या बोला, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। अब लगा दिया तो क्या होगा, एक्सेशन होगा, मतलब बेसिकली स्टेट चेंज होगा, मतलब बेसिकली बिकॉज मोमेंटम चेंज होगा। तो सेकेंड लॉ बेसिकली यू से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ विच मोमेंटम, लीनियर एंगुलर, लीनियर, the rate of change of linear momentum of a body is proportional to what, नहीं, घाई नहीं चाहिए, वी आर नॉट इन हरी, थिंक वाइजली। पहले लॉ में फोर्स अप्लाई नहीं किया था, अब हमने फोर्स अप्लाई किया, इसलिए क्या चेंज हुआ, मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to what is changing the momentum, force. That is second law. So it tells you that rate of change of momentum, linear momentum, is proportional to external applied force, and the change in momentum takes place in the direction of the applied force. किसने बताया, ये वेक्टर वेक्टर है, यहाँ पे प्लस साइन नहीं बताया। अगर मैं नेगेटिव साइन लिखता हूं दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन और मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एक स्टेटमेंट है, इसको आप लिख सकते हो, और यू कैन एक्सट्रैक्ट फिजिक्स फ्रॉम इट। व्हाट यू कैन से इज rate of change of linear momentum is proportional to the external applied force and it takes place in the direction of the applied force. Good. Example बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक ब्लॉक था एट रेस्ट, मतलब मोमेंटम जीरो इनिशियल, करेक्ट, इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है बिकॉज ये रेस्ट पे था। नाउ आई अप्लाई अ फोर्स एफ, कहाँ मूव होगा ये, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, तो फिर वही तो उसका मतलब है दैट दिस dp बार इज p2 माइनस p1 बाई t2 माइनस t1। ये जीरो, इनिशियल टाइम जीरो ले लेता हूँ, तो f बार क्या मिला हमको, p2 बार बाई t। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इट टेल्स यू, राइट। और इसको आप F इक्वल टू एम ए भी लिखते हो, वो कैसे लिखते हो, बहुत सिंपल है। व्हाट इज दिस, दिस इज m फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मैंने मास कॉमन निकाल लिया, और ये जो क्वांटिटी है दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये आप लिखते हो m इंटू ए बार। गुड। सो आई वुड वांट टू नो, ऑफ कोर्स आपको पता है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स। गुड। तो ये चीज है, आई एम सॉरी टू आस्क यू, बट इन बिटवीन आई नीड टू आस्क यू, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ फोर्स। Okay, so let me put it point by point. If I am talking about first, न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। So I'll just say absolute units. Absolute units. How do you define 1 Newton? What is your definition of 1 Newton? If I say how much is 1 kilogram? नहीं, I'm asking about intrinsic definition of kilogram. वैसे ही I'm asking you, what is 1 Newton? It is force, पता है, but what is 1 Newton? हाँ हाँ। If a force produces an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kilogram, then the force is said to be 1 Newton. तो इसलिए हम लोग लिखते हैं force of 1 Newton is simply kilogram meter per second square। मतलब यहाँ पे 1 होता है बेसिकली, तो ये पता होना चाहिए। तो कैन यू नाउ डिफाइन व्हाट इज अ डाइन।
नहीं, I am asking you intrinsic definition. When a force produces an acceleration of how much? 1 centimeter per second square on a body of mass 1 gram, that is 1 dyne. Then what is the conversion factor between Newton and dyne? 10 raised to 5 dyne. Okay, then there is something ये बहुत बार आता है, kgf, किलोग्राम फोर्स. ऊपर पहले SI, फिर हमारा आ गया CGS सिस्टम और किलोग्राम फोर्स ये भी यूज होता है. व्हाट इज दिस किलोग्राम फोर्स? सिर्फ एक ही चेंज है. 1 न्यूटन के लिए आपने क्या हुआ था, कितना एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. When a force produces an acceleration of 9.8 meter per second square on a body of 1 kilogram, that is kgf, 1 kilogram force. क्योंकि ये एग्जाम में एक बार आया तो kgf इसको पता नहीं था, छूट गया. तो आई विल शुड राइट दिस 1 kgf. फिर कितना आएगा 1 kgf? हाउ मेनी न्यूटन्स? 9.8. एक्सेलेंट. तो ये पता होना चाहिए, राइट? So there is something else which is called as gram force. अब logically आप बता सकते हो, when a force produces an acceleration of 980 centimeter per second square on a body of mass 1 gram, that is gram force. So 1 gram force is equal to how many dynes? क्योंकि अभी 980 क्योंकि मास तो 1 हो गया ना, मास 1 हो गया, एक्सेलरेशन कितना है 980, तो 980 dynes. ओके, so this is what you must know. यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कन्वर्जन फैक्टर्स भी मैटर करते हैं बहुत बार, बिकॉज दिस इज वेयर you may lose marks. Okay, then let us talk about types of forces. Types of forces. In this pehla type, I think, yes, variable force. Variable force. What do you mean by variable force? If you work energy principle में variable force apply करेंगे हम, what is the variable force? You sitting over here, does the gravitational force vary with time or with your position in this room? No, that is constant. So force which varies, अभी which time होगा तो time dependent variable force, with position होगा तो position dependent variable force. Simple है. तो let us first talk about time dependent force. Time dependent force. Can someone of you give me one example of time dependent force? At least one. Have you read about or came across any time dependent force? You have. हमने न्यूमेरिकल लिया है मॉड्यूल 1 में. उस पे एक टॉय कार था, उस पे चार्ज डाला था हमने और वो चार्ज को, उस कार को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, बराबर, एंड इट स्टार्टेड मूविंग. फिर थोड़ी देर के बाद क्या किया था हमने, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हुआ उस केस में.
मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो चेंज है बेसिकली विथ टाइम, करेक्ट. So when you keep charges in external field and if you are changing the direction or polarity or reversing the force with time, that becomes a time dependent force, right? So just as an example, हम details में नहीं जाएंगे. It is just to have a rough idea about what is time dependent force. Position dependent force, gravity. अर्थ से ऊपर गए तो चेंज होगा, अर्थ के नीचे गए तो चेंज होगा, और इक्वेटर टू पोल गया तो भी चेंज होगा. भाई जब ये 9.8 वैल्यू जो बताई आपने, ये कहाँ पे होता है वैल्यू? नहीं, अर्थ के सरफेस पे तो सही है, बट इक्वेटर पे, धुले में, पुणे में, नॉर्वे में, चिली में, कहाँ पे 9.8 कहाँ पे? 9.8 इज कांस्टेंट वैल्यू. हम लोग कांस्टेंट लेते हैं बट इट वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. डू यू रिमेम्बर समथिंग अबाउट variation of g with latitude? What is latitude? Latitude and longitude. What do you mean by latitude and longitude? Hmm? Imaginary lines, yes, drawn on the surface of earth या globe, correct. but अभी imaginary lines जो आप draw करते हो, ये globe हो गया. अभी यह लाइंस तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइंस में ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ. तो वर्टिकल लाइन लैटिट्यूड होता है या हॉरिजॉन्टल होता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड? अगर मैं इक्वेटर से मेजर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस लाइन के लिए, और मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उस दूसरी लाइन के लिए एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर विल बी डिफरेंट. तो वेरीफाई करो, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूजन होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, तो चेक करो. बट इन एनी केस द आइडिया वाज सिंपल. ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जरूरत क्या है वैसे? नेविगेशन के लिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग नेविगेशन, लेट्स go into little more basics. I have this point P. What is the position of this point? You cannot say. Basically you can say only when you associate a frame of reference. मतलब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओगे, फिर बोलोगे ठीक है x और ये y, तो पोजीशन इज x, y विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, करेक्ट, राइट. अब अगर हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर है तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू हैव अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि स्फीयर के ऊपर है, राइट. तो r, थीटा और फाई इंस्टेड ऑफ x, y, इट इज मोर कन्वीनियंट. लोग तो उल्टा बोलते हैं डिफिकल्ट है ये r, थीटा, फाई में, और ये तुम्हें है नीट के लिए कम से कम थोड़ा सा तो है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना है क्या ये वर्ड? नहीं. स्फीयर पे एक पॉइंट को लोकेट करना है. हाउ डू वी लोकेट दिस पॉइंट? ओरिजिन कहाँ सेट करोगे? स्फीयर पे एक पॉइंट है, स्फीयर पे, सर्कल नहीं है, स्फीयर है. ओरिजिन कहाँ सेट करेंगे? कहीं भी किया तो यहाँ सेट किया तो असिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाएगा ये? स्फीयर पे, स्फीयर का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे बैठ के मैंने देखा तो पूरा स्फीयर का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा? और
थिंक वेरी बेसिक, स्पीयर का कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैं बैठ गया तो मुझे स्पीयर के सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज, आई हैव टू गो थ्रू बेसिक्स, आई एम सॉरी फॉर दिस बट आई हैव टू। सबसे पहले आप सेंटर पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट कर देते हो। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बताना है लोकेशन, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, और ये इजी क्यों है, ये इजी इसके लिए है क्योंकि स्पीयर पे पॉइंट पी कहीं पे भी हो, वन कोऑर्डिनेट becomes constant and that is r, is always fixed, right? Okay, हमेशा फिक्स होता है ये तो। then you measure two different angles, एक को बोलते हो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दूसरे को बोलते हो फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, and in many cases you can also set one of these angles also fixed, right? correct। तो ये जो एंगल है with respect to x axis can be converted to latitudes। इक्वेटर से कितना ऊपर हूं मैं, how much is latitude of this locality, मतलब दूल्हे बोल रहा हूं मैं इन जनरल, you don't know, are we in the northern hemisphere or in the southern hemisphere, where are we located by the way? नहीं 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 नहीं, तुम कैप्रिकॉन की बात कर रहे हो मेरे साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ इक्वेटर से हम यहाँ पे आते हैं। नॉर्दर्न हो गया या साउदर्न हो गया, नॉर्दर्न, ये बेसिक्स पता होना चाहिए। गुड, चलो ठीक है। एनीवेज, नाउ द थिंग इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश वेरीज विथ लैटिट्यूड। तुम इक्वेटर से कितना ऊपर हो, that will also decide how much is your weight directly or indirectly। of course ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, that is why we say 9.8 कांस्टेंट मान लो। वो कुछ था, g माइनस समथिंग था, वो समथिंग क्या था, r ओमेगा स्क्वायर समथिंग समथिंग cos of latitude, करेक्ट? यही है r के डायमेंशंस मीटर, ओमेगा एंगल अपॉन सेकंड, तो ओमेगा स्क्वायर एंगल अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, cos to this just a number and phi is latitude। now if I am at equator, मैंने पहले इसलिए बता दिया कि ये यहां से जो एंगल मेजर करोगे that gives you location with respect to equator। अगर मैं इक्वेटर पे हूं, लेट अस से पॉइंट P यहाँ पे, तो फाई कितना हो गया, मैं इक्वेटर पे ही हूं तो एंगल कितना हो गया, जीरो। व्हाट इज cos जीरो, मतलब g at equator is g minus something, minus where r is radius। मैं अगर पोल पे हूं, पोल पे, हाउ मच इज दिस एंगल, व्हाट इज cos 90, जीरो, तो कितना आ गया, हाँ तो ये जब आप बोलते हो ना 9.8, this value is at pole and it is maximum at pole and minimum at equator, right? So this is an example of position dependent force also। इसमें आपका थोड़ा ग्रेविटेशन भी रिवाइज हो गया, तो ये पता होना चाहिए। गुड, देन you must, you of course you know this velocity dependent force।
ऐसा भी फोर्स होता है। हिंट, नो, ये क्या होता है? व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन। फ्लूइड्स में फ्रिक्शन कहीं पड़ा है क्या? फ्लूइड्स में फ्रिक्शन कहीं पड़ा है आप लोगों ने? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स याद है क्या आपको? क्या था इक्वेशन? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 6 पाई eta rv। eta was कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस भी होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल फोर्स। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, अभी वेरिएबल फोर्स खत्म हो गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। हैव यू हर्ड ऑफ दिस सेंट्रल फोर्स? Central force, force which is acted toward center. Example, centripetal. Example, gravitational force, क्योंकि वो हमेशा अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ होता है, राइट। देन आगे क्या बोला है? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। गुड। तो आगे दे आर सेइंग समथिंग, क्योंकि दिस वी विल ऑल नीड इन वर्क एनर्जी टॉपिक। सो कंजर्वेटिव and or non-conservative force. What is this conservative force? What is non-conservative force? Path dependent. Yes, but what path dependent? But what path dependent? What do you want to say by path dependence? Distance matter. If I take out air from this room, then एक ऑब्जेक्ट को मैं टेबल के टॉप से नीचे रख रहा हूं, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। आई कैन टेक डिफरेंट पाथ्स। यहां से ऐसा जा सकता हूं, यहां से ऐसा भी जा सकता हूं, कहीं और से भी जा सकता हूं। Will the work done be same or not in this case? If initial and final positions are same, will the work done be same or not? Yes or no? Same होगा। So in such cases where work done does not depend on the path that you are taking, that is conservative force. In such cases there is no dissipation, क्योंकि कुछ था ही नहीं रेजिस्ट करने के लिए। अब मैंने एयर भर दिया, अभी एयर है तो एयर का डेंसिटी कहीं ज्यादा होता है, कम भी होगा। सो इफ आई टेक अ पाथ नाउ, हो सकता है वहां पे डेंसिटी कम था, देयर इज लेस फ्रिक्शन, देयर इज लेस डिसिपेशन, राइट, देयर इज लेस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट। दूसरा पाथ लिया तो देयर इज मोर बिकॉज डेंसिटी इज मोर। so in such cases the work done is path dependent, so such forces are called as non-conservative forces. Good. Then there are some other common forces. The common forces में first thing is weight, और weight आपको पता होता है, right, it is m into g. Then there is something called as reaction or normal force, ये भी आपको पता होता है, right? For example, if I say why do you feel you have weight, why, it is because of the normal reaction exerted by whatever surface you are sitting on, you are putting action and right. यहाँ पे एक चीज है जो हम आगे देखने वाले हैं,
You will have to know what is the meaning of apparent weight and what is the meaning of actual weight. Apparent weight is always the normal force या फिर normal reaction मैं R से denote करूंगा which a surface exerts on you. ये apparent है, right? और actual weight is always mg. हो सकता है normal reaction और mg same हो, तो उस केस में apparent weight is equal to actual weight. When you are in lift, और अगर आप लिफ्ट में हो और यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, तो लिफ्ट जैसे ऊपर जाएगा वेट बढ़ेगा, मतलब इन दैट केस एपरेंट वेट इज मोर देन एक्चुअल. वो क्यों होता है वी विल बी डिस्कसिंग टुडे और टुमारो प्रोबेबली. तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए. और जब लिफ्ट नीचे आता है तब पहली बात तो मैंने दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी. लिफ्ट जब ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन, राइट, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा तो नो चेंज. दैट्स व्हाई जब लिफ्ट चालू होता है तो यू सी देयर इज सम इंक्रीज एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन अगेन इट डिक्रीजेस समथिंग लाइक दैट व्हेन इट ब्रेक्स बेसिकली. ठीक है. देन डू यू नो व्हाट इज टेंशन? एंड आई डोंट मीन बाय टेंशन, आई डोंट मीन सरफेस टेंशन. दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. पता है आपको ये सब? गुड. व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? सो सिर्फ टेंशन में आप एक स्ट्रिंग लेते हो, राइट? स्ट्रिंग पे कुछ एक्शन होगा और नॉर्मल रिएक्शन होगा टेंशन, राइट? सिमिलरली स्प्रिंग पे कुछ एक्शन होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग के अंदर, दैट इज स्प्रिंग फोर्स. गुड. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बताओ, पता ही है आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, which means action मतलब force basically, which means force never exists in similar form. तो वैसे कपल में आएगा, मतलब एक्शन के साथ रिएक्शन आने ही वाला है. गुड. तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि आपको पता है, तो बाद में देखेंगे हम जब जब लगेगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है, बट स्टिल आई वांट टू नो how many frame of references you know and what you have understood from this. दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कौन से दो? Inertial and non-inertial. What do you mean by inertial? Moving with what? Constant v or changing v? Okay, any other thing? क्योंकि इसको नॉन एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं फिर. दिस इज नॉन एक्सेलरेटेड. सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest or which is moving with constant velocity is known as inertial frame of reference. And you can apply Newton's laws of motion only in inertial frame of reference. क्योंकि जब स्टार्टिंग में लॉज डेवलप किए गए थे, nobody thought that even an observer can sit on a accelerated object और वहां से भी मेजर कर सकते हो कुछ, राइट? तो जब भी ये डेवलप हुआ था न्यूटन्स लॉज, it was under an assumption that the observer is at rest. क्यों? यहाँ पे रेस्ट पे बैठ के स्टार्स के, प्लैनेट्स के मोशन को देख रहे हो, यहाँ पे बैठ के गाड़ी मूव हो रहा है उसको देख रहे हो. सो राइट, देन there's something called as non-inertial, which is
accelerated frame of reference. As a direct consequence of this, अभी होता क्या है कि मैं न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे करना है, तो क्या करेंगे फिर? एक एक्स्ट्रा फोर्स टर्म ऐड होता है, सूडो फोर्स बोलते हैं उसको. जैसे एग्जांपल, अभी आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ने राइट टर्न लिया एंड यू फील अ पुश टुवर्ड्स लेफ्ट. Was someone pushing you? No, it was because that you went into non-inertial frame of reference. Why? Because as soon as you're on the curve, centripetal acceleration आ गया. So now you are in an accelerated frame of reference. Centripetal fugal एक ही बात है, एक ही बात है. तो you get a मतलब because it's centripetal, hence you feel a centrifugal push outwards, right? या फिर गाड़ी में चल रहे हो, गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा, you also feel a push. So these are some basic things, right? Next thing that we will need is impulse. What is impulse? Changing Small change when a large force is applied to a body for a very small time. for a very small time. Accident हुआ है किसी का? हुआ है? तो जो कोलिजन होता है, मतलब जो फोर्स होता है, इट इज फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट? तो क्या होता है उस केस में? नो फोर्स, वेरी हाई फोर्स एंड देन नो फोर्स, राइट? क्रिकेट खेला होगा, सॉकर खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, तो जब आप बॉल को मारते हो, then the force acts on the ball for a very small time. When a force acting on any body is for very small time, then we talk about impulse instead of force. Why? Because first of all, it is a variable force, second, it is acting for a very small time. Good. Denoted by J, given by F dt. Right. But we already know what was F from Newton's second law. dp by dt. dp by dt dt. So इसका मतलब इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम. और इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम के डायमेंशंस होंगे वही इम्पल्स के डायमेंशंस होंगे, राइट? गुड. नाउ इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, ये अभी जो क्वेश्चन पूछा तुमने, फोर्स अगेंस्ट टाइम, ऐसा अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? इम्पल्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम. सो एफ डी टी विल गिव मी J, correct? Right. So this is what you need to know. तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम लोग बाद में आएंगे इस पे. देन यू मस्ट नो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब अलग अलग बुक में ये बताने का तरीका अलग अलग है. जैसे कोई बुक्स आपको कोलिजन के थ्रू समझाता है. कोलिजन के थ्रू समझाना मतलब क्या? दे विल टेल यू यू हैव अ बॉल ऑफ मास m1 moving with velocity, initial velocity u1, and then there's another ball of mass m2. Depend करता है direction of motion, doesn't matter. m2 moving with velocity u2. Definitely इस केस में u1 should be greater than u2 to have a collision. मुझसे जो आगे चल रहा है उसको धक्का मारना है तो मुझे उससे फास्ट जाना पड़ेगा. सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, राइट? और after collision the velocity of first becomes v1 and of second becomes v2. By the way, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, बीट इलास्टिक बीट नॉन इलास्टिक, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. अभी क्या होता है कि कोलिजन हम लोग दो कैटेगरी करते हैं, एक इलास्टिक, एक नॉन इलास्टिक. आई जस्ट पुट इट हियर, वो बाद में आएगा ही, बट बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट वी शुड ऑल्सो मेंशन. ओके.
I don't like it. But so when you talk about collisions, elastic, non-elastic, doesn't matter इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। सिर्फ इलास्टिक में और एक चीज कंजर्व होती है, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वेलोसिटी तो चेंज हुआ, अभी देखा, अभी तो देखा u1 का भी ये v1 हो गया, u2 का v2 हो गया। इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, क्योंकि ये बहुत जगह पे आपने सीखा है, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। 12th, हाँ काइनेटिक एनर्जी, 12th के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, है ना। उसमें आप बोलते हो द कोलिजन इज इलास्टिक, फिर आप उसमें ये भी बोलते हो अरे कोलिजन के पहले ये वेलोसिटी था, कोलिजन के बाद वो हो गया, फिर हाउ इट कम इट इज इलास्टिक, क्योंकि एज ही सेड वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो हाउ कम इट इज इलास्टिक इवन इन दिस केस। So you talk about total kinetic energy conservation. So you say kinetic energy final is equal to kinetic energy initial, and here there is maybe loss of energy. It's not equal, correct? So in any case, दोनों cases में momentum is always conserved. तो फिर आप लिखते हो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फिर आप बोलते हो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और ये सब सॉल्व करते करते आप v1 v2 के इक्वेशंस भी बनाते हो, दैट वी विल सी, और वो याद रखने का ट्रिक बता दूंगा, तो यू डोंट हैव टू डिराइव थिंग्स। गुड, तो द पॉइंट वाज, या तो आप कोलिजन से लिनियर मोमेंटम की बात कर सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो we had two objects moving separately, right? m1 मास है, m2 मास है, इसका वेलोसिटी जो भी होगा v1 v2 u1 u2 जो भी लिया होगा, आई डोंट केयर, जो भी लिया होगा, ओके। और आप बोलते हो कि ये सिस्टम पे ओवरऑल फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा, अभी तो देखा ना, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मोमेंटम, so in such cases also you have conservation of momentum, so I'll not write in details because one is sufficient. Next, now what you can do with the help of this conservation of momentum. So first example is, so when you talk about applications of conservation of momentum, you talk about recoil of a gun. What is the meaning of recoil, by the way? पीछे आता है वो, राइट? और ये हायर फिजिक्स में बहुत रिक्वायर्ड है, नॉट फॉर अ गन बट व्हेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट होते हैं तभी भी रिकॉइल होता है। मतलब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेडियो एक्टिविटी, पता है आपको, ऑलरेडी 12th में था। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, वो एग्जांपल लूंगा मैं इसमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ डीके होता है, मतलब क्या होता है, यू राइट, अल्फा डीके बीटा डीके, मतलब क्या होता है, मतलब एक स्टेशनरी न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो था क्योंकि स्टेशनरी था, तो अब एक पार्टिकल बाहर निकला, राइट, तो इट हैज सम मोमेंटम, तो न्यूक्लियस को पीछे आना पड़ेगा, इट्स जस्ट लाइक बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो दैट इज whenever there is radioactive decay you have to apply conservation of linear momentum। तो इफ आई आस्क यू, या फिर किसने पूछा, तो ये तो रिकॉइल हो गया, बुलेट फायर किया हमने, तो ऐसा है कि हमारे पास एक गन था, उसमें पहले बुलेट था स्टेशनरी, तो आई विल से ug 0, velocity of gun initial, velocity of bullet initial 0, right?
final velocity of bullet is not zero, final velocity of gun is not zero. If someone asks you how much is the recoil velocity of gun, फिर क्या बोलोगे आप? P initial equal to P final. P initial is mass of gun, velocity, initial velocity of gun, plus mass of bullet, initial velocity of bullet. In any case this is zero, तो ये आ गया आपका शून्य, जीरो. फाइनल विल बी MBVB plus MGVG. So this will give you VG is equal to minus MB by MGVB. ये माइनस साइन आपको बताता है that the gun will be moving in reverse direction, right? One more famous example of this is जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, so we should talk about it, और वो है रॉकेट propulsion. राइट, तो अभी यहाँ पे इक्वेशंस बहुत सारे लिखे हुए हैं, यू विल सी मॉड्यूल से आपके पास बहुत सारे इक्वेशंस है उसमें. तो होता क्या है बेसिकली, आई हैव अ रॉकेट, ये रॉकेट है, इसमें कुछ फ्यूल टैंक होगा, जब रॉकेट का इंजन स्टार्ट करेगा तो रॉकेट ऊपर जाएगा, देन इट द गैसेस विल ब्लो अप इन द रिवर्स डायरेक्शन, तब जाके ऊपर जाएगा. एक्चुअली उल्टा प्रोसेस है, जब आप फ्यूल बर्न करते हो तो वो फ्यूल का जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज. तो व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, मतलब ओवरऑल नेट फोर्स ऑन द रॉकेट क्या है, ये हमको पता करना है. व्हाट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट? कैन यू derive or can you remember or do you remember this equation? Force, upward force is equal to downward force. अपवर्ड फोर्स F तो निकालना है, डाउनवर्ड दो फोर्सेस है, कौन सा? एक तो ये जो आपने अभी फ्यूल जलाया उसका, और एक है तो वो जो फ्यूल जलाया, फ्यूल बर्न कर रहे हो, फ्यूल बर्न कर रहे हो मतलब मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है मतलब dm/dt एक टर्म आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किलोग्राम पर सेकंड तो आ गया. फिर क्या बचा? वेलोसिटी. यस, हो गया इक्वेशन रेडी. तो इट्स नो बिग डील, इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं है. तो ये आ गया फोर्स. अब अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट कर देते हैं, वैसे कर नहीं सकते पर कर देते हैं, तो फिर दूसरा टर्म जाएगा, राइट? तो व्हाट अदर थिंग इज दिस, अभी इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन, what will be acceleration in this case? Simple है. What will be acceleration in this case? How do you find out acceleration? आप बोलते हो ma, फोर्स इज ma ना, इक्वल टू माइनस u dm by dt माइनस mg. क्या चाहिए? a डिवाइड बाय m. तो ये m को मैं यहां से उठा के यहां रख दूंगा, और यहाँ पे बाय m होगा तो कैंसिल हो जाएगा. मतलब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको? जस्ट सिर्फ ये g को थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ, हो गया एक्सेलरेशन. वापस ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दी तो g हटा दो, तो दिस इज एक्सेलरेशन. किसका एक्सेलरेशन? रॉकेट. कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अपवर्ड एक्सेलरेशन हियर. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज हियर. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ऑफ कोर्स माइनस gt आएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि g into t is velocity at some instant of time. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा विद टाइम तो ये फैक्टर तो आएगा. हाँ ठीक है, अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट कर तो ये भी जाने वाला है वहां से. There's one more term.
impulse. नहीं, v is equal to u plus at लिखते हो आप, तो there will be a term with u definitely, right? But is this sufficient? देखो v is equal to u plus at पता है ना, तो जब जो चीज ऊपर जाती है तो क्या लिखते हो, u minus gt, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, तो वही है, but there is an additional term, ये log natural log to the base e आना चाहिए, yes, to the base e of initial mass upon instantaneous mass. ये कहां से आया? बेसिकली देखो क्या होता है ना, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि एक्सप्रेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, राइट? तो द थिंग इज, मैंने अभी बताया आपको कि रॉकेट को ऊपर जाना है तो फ्यूल बर्न करना है, और फ्यूल कोई वहां पे निग्लिजिबल नहीं होता है, फ्यूल हैज मास एंड दैट इज अप्रिशिएबल मास, राइट? तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा मास विल डिक्रीज, एंड मास डिक्रीज होने का मतलब ये है that we have to take into consideration while calculating instantaneous velocity that mass is also decreasing. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मास कम होगा वेलोसिटी पे उसका फर्क पड़ने वाला है, तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल मास टू दैट इंस्टेंटेनियस मास। बाकी वही है, v इक्वल टू यू प्लस एटी ही किया है हमने, इट्स नथिंग दैट वी हैव यूज समथिंग एल्स, वही चीज है, सिर्फ ये फैक्टर और ये डायमेंशनलेस नंबर है, वो लॉग ऑफ अ नंबर होता है फर्स्ट थिंग, वैसे भी मास अपॉन मास नंबर ही होता है। तो दिस, इफ यू वांट मी टू गिव यू इन डिटेल, आई कैन से लॉग ऑफ m0 माइनस लॉग, माइनस हो गया, आखिर तो वही था आइडिया, माइनस हो गया, वो मास कम हो रहा है, राइट? तो these are the three equations that you need to remember while talking about rocket propulsion, ये याद होना चाहिए। Then next important thing is FBD, free body diagram, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस FBD से ही करवाता हूँ। What is free body diagram? We take a point in consideration and then apply all the forces acting on that body. हाँ, तो body minus surroundings, basically you remove all the surroundings, you just show what are the forces acting on the body, that's it, that is free body diagram। हम लोग ये बाद में एग्जाम्पल से थ्रू करने वाले हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रियल सिनेरियो, रियल थियरी ऑफ न्यूटन्स लॉज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से आगे आने वाले टॉपिक पे ही सॉल्व करने वाले हैं। apparent weight of a body or a person in a lift, this is really important, so we'll have to make a table for it। Condition, then figure, I don't care, जगह छोड़ देते हैं लगा तो, maybe I'll just go to next page, important है, so condition, figure, and we'll have to talk about acceleration, velocity, etc, etc, velocity, acceleration, and finally we have to talk about normal reaction force R, and lastly good, excellent, wow, ये क्या है, sorry for this but I have to make space, right?
finally we have to talk about important thing was conclusion. तो ठीक है, conclusion हम नहीं भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. Important is reaction. मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया what happens to your weight. Okay, तो पहला कंडीशन एंड आंसर शुड कम फ्रॉम योर साइड. नाउ पहला कंडीशन, हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं. लिफ्ट में एक पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, उसकी बात चल रही है एट रेस्ट. कौन रेस्ट पे? लिफ्ट रेस्ट पे. सो लिफ्ट एट रेस्ट. फिगर आई जस्ट स्किप. वेलोसिटी v is 0, acceleration is 0. Normal reaction r in this case will be equal to mg. तो अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो फिर यू कैन से दिस इज अ लिफ्ट. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो r इज बैलेंसिंग mg. तो r इक्वल टू mg. व्हाट इज योर कंक्लूजन इन दिस केस? r is apparent weight. So apparent weight is equal to actual weight. राइट. दूसरा क्या बोला है? लिफ्ट गोइंग अप. मैं थोड़ा लेजी हूं तो मैं एरो से बताऊंगा. विथ कांस्टेंट v. What? नहीं, v is constant, not 0. Lift is going up, but v is constant. What happens to a? Because it is dv by dt, and derivative of v constant is 0. What happens is the same thing. It is the same thing. Then lift going up, of course, with variable a, and acceleration a in this case, let us say, is less than g. With variable v है ना, with variable v. अभी एक्सेलेरेशन तो है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो व्हाट आर योर कंक्लूजन्स? यहाँ पे आपको पहली बार डायग्राम की जरूरत पड़ेगी एंड देन यू कैन जस्ट स्किप डायग्राम्स. ये लिफ्ट, ओके, देन उसके अंदर ये बॉडी, राइट. देन ये लिफ्ट चली ऊपर विथ एक्सेलरेशन a. यहाँ था नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ था आपका mg डाउनवर्ड्स. ओके, तो दिस इज a, this is r, this is mg. I want to know what will you write about equation here? r minus mg equal to resultant net force, because we are talking about net force here. देखो, mg minus r या r minus mg, ये याद रखने का एक सिंपल लॉजिक है. लिफ्ट कहाँ जा रही है? गुड. तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नेट फोर्स, है ना. नेट एफ नेट इज इक्वल टू, अभी ऊपर जा रही है तो ऊपर का ज्यादा फोर्स होगा, तो आर माइनस एम जी. व्हाट इज फोर्स इन जनरल? एम ए. तो आप लिखोगे एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी. मतलब R will be equal to M common A plus G, not minus but A plus G. Correct? So this is what you need to know, right? Then cancel cut दिया, ठीक है, right? So what do you conclude from this? What is your conclusion about apparent weight and actual weight? ग्रेटर देन, क्योंकि आप mg में ma ऐड करोगे
तो apparent weight is equal to actual weight, इसलिए मैंने बोला था जब इनिशियली लिफ्ट चालू होता है और अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो आपका अगर वेट 70 किलोग्राम है बट द मशीन विल शो यू मोर देन 70 जस्ट व्हेन इट स्टार्ट्स। उसके बाद तो वो कांस्टेंट भी अचीव कर लेता है, फिर वापस से न्यूट्रल आ जाता है वो। देन ये हो गया एक कंडीशन। अभी इसका ही सिमिलर कंडीशन अगर a इक्वल टू जी हो गया तो सेम ही है 2mg, मतलब apparent weight will be equal to twice of actual। मतलब अगर आपका 70 किलोग्राम है तो मशीन will show you 140। okay, good। then what happens if a is greater than g? इक्वेशन बनाना है। just conclusion, apparent weight will be more than twice। यहाँ पे उसका कोई ऐसा funny meaning नहीं है, but when the lift comes down then you have to worry about that thing because it means something which is really funny। तो अभी हमको क्या करना था, हम लोगों को वापस कुछ कंडीशंस हमको डिस्कस करना बाकी है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करना चाहता हूँ, पता नहीं होता है कि नहीं, आई डोंट नो, छोड़ो, आई डोंट नो। सो I will have to write over again condition. This is not what I will discussing, but still then it was, we were talking about velocity will not be discussed anyways, acceleration, normal reaction and conclusion, that is important। good। तो अब लिफ्ट आ रही है नीचे, of course with some acceleration, right? तो of course this is the condition। what will be normal reaction? orally चाहिए। what will be mg minus r equal to m into a। मुझे नॉर्मल रिएक्शन का बताओ। he is right, he is right। नीचे कौन सा फोर्स था mg, ऊपर कौन सा था नॉर्मल रिएक्शन। अब लिफ्ट नीचे आ रही है, mg माइनस r इक्वल टू ma, राइट। तो r गया राइट हैंड साइड पे, ml आया यहाँ पे, m g माइनस a इक्वल टू r, तो मतलब m g माइनस a। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हियर? mg में से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब apparent weight is less than actual weight। वही जो तुमने बोला, that's right, the same thing। what will happen if a is equal to g? weightlessness। this is what happens जब लिफ्ट का केबल कट जाता है, राइट। तो लिफ्ट is falling with g, accelerating with g, और उसके अंदर जो भी होगा it feels weightlessness। तो weightlessness। what does this mean? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होगा, क्यों? a is greater than g, तो नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव, मतलब क्या? the body will go towards ceiling, right? this is what it means, the body will go towards ceiling। so you already have concluded it, so I am not going to write anything on this now, right? तो इतना होने के बाद acceleration on स्मूथ सरफेस। स्मूथ इसलिए मैंने बोला कि फ्रिक्शन जो होता है वो हम बाद में इंक्लूड करने वाले हैं।
and this is the last topic that we will be discussing because we want to stop early today, right? तो मुझे ये बताओ पहला केस, when a pull is horizontal, what do you mean by pull? force तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, पहले रेस्ट पे था तो mg नीचे था, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, तो r इक्वल टू mg था, मुझे पुल करना है, खींचना है। Don't worry, we are not in earthquake zone. This is something to do with something has passed with speed greater than speed of sound. तो earthquake तो नहीं था, don't worry. No, I have suffered. I have seen, I don't know, maybe 20 earthquakes in Chile. Anyways, अब इसको पुल कर दिया with a force F, right? तो सबसे पहले R इक्वल टू mg यहाँ पे रहेगा ही, नॉर्मल रिएक्शन और बैलेंस्ड। F इक्वल टू ma है, पता है, right? What is acceleration in this case? How do I find acceleration in this case? F by m. Simple. Extremely simple case. दूसरा केस 2, जरूरी नहीं है कि पुल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वी आर पुल, नॉर्मली ऐसा होता है, कभी देखा है किसी को लोड गाड़ी खींचते हुए, देखा है? देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज हाउ इट इज बीइंग पुल्ड, है ना? या फिर कभी खेत में गए तो यू विल डेफिनेटली सी दिस, सिंचाई करते वक्त दे पुल इट अप। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में mg, ये r, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं ये, और ये एंगल मैं थीटा मानता हूं, सो यस, f cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये आएगा एक और फोर्स यहाँ पे f sin थीटा, and this will be f sin theta. So r plus f sin theta will balance mg, and f cos theta will give you ma. So a will be f cos theta by m. Third case, right? ये था pull is acting at an angle of theta with respect to horizontal, upward, क्योंकि upward डाउनवर्ड भी होगा, ऐसा भी तो धक्का दे सकते हैं, पीछे से भी तो कर सकते हो ना, दैट इज अ पुश। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पुश एट एन एंगल थीटा। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यू हैव एन ऑब्जेक्ट, यू आर पुशिंग इट लाइक दिस। तो लेट मी ड्रॉ इट लिटिल प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे वी नीड टू ड्रॉ थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो ये हो गया आपका फोर्स विच शुड बेसिकली गो डायगोनली, ऐसा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये है आपका mg, राइट, एंड वी हैव फोर्सेस। तो फोर्स में आपको जहां चाहिए आप वहां पे वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हो, बट इन एनी केस आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर। दिस एंगल इज थीटा, ये कंपोनेंट होगा f cos थीटा, और नीचे एक कंपोनेंट जाएगा दैट विल बी f sin थीटा, मतलब यहाँ पे एक f sin थीटा आने वाला है। सो दिस इज f sin थीटा, और ये जो ब्लैक में था वो था mg, और ये था नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे भी लगभग वही है, f cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो a वापस से आ गया f cos थीटा बाई m, but normal reaction is equal to mg plus f sin theta, whereas यहाँ पे normal reaction was
mg minus f sin theta, करेक्ट, राइट। तो ये 3 केसेस हमको लगने वाले हैं, राइट। फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर में इसमें फ्रिक्शन ऐड किया जाएगा। अभी स्मूथ सरफेस था, बाद में रफ सरफेस आएगा, तो विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन इन दैट केस, राइट। Okay, so we'll have to stop early today as I told you, but we have an extra class संडे को बोला है, या तो मंडे को होगा, पर होगा मतलब शेड्यूल जो है उससे चलना पड़ेगा हमको। So we'll make up for this lost class in upcoming days.